अधुना अस्य सत्रस्य सञ्चालनं कुर्वन्ति अस्माकं साङ्ख्ययोगविभागस्य उपाचार्याः डॉक्टर डी ज्योति महोदयाः। नमस्सभाये स्वागतं पुनरेकवारं। तत्र सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेस ऋषिहुड यूनिवर्सिटी एंड नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति इत्यनयोः उभयोः संयुक्त तत्वावधानेन आयोज्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे अस्य कार्यक्रमस्य सत्रस्य अध्यक्षाः सन्ति डी अन्नपूर्ण महाभागाः। ताम् अहम् आह्वयामि वेदिकाम् अलङ्कर्तुम्। And I request Surabhi Bhagat ji onto the stage to deliver this. The process of remembrance. Madam is certified Garbha Samskar counselor and research Beej Garb Shiksha Samskar expert, health and wellness coach. The main theme of her topic is the Avadhana Prakriya can be trained the baby in the fetus itself. So for that, she has trained many couples right after the marriage for the Bija Samskar. And then she has presented and published various papers on Garbha Samskar. And she actively conducted various Garbha Samskar coaches and skills Ayurveda courses, pregnancy, yoga, Sanskrit learning courses online through across the world. She visited all across the India to know the nitty-gritties and various implementations, the concept going on across the nation. The ancient wisdom of the Nanis, Dadis is also being recorded to save for the future generation. And then taking the references from Vedas, mantras, medicines, dhyana and tap, she transforms that knowledge to the mother, through which the mother sends the transformation to the baby in the Garbha itself. It is very unique topic, and this is very unique resource person we got. Please welcome ma'am. And then we have another resource person, Dr. Uma Maheshwar ji. Please sir. Sir is working in the as an assistant professor in Srinagar, Sringeri Rajiv Gandhi campus, to bring out his biodata. More than 1 hour it will take. The one thing I can say is, Sir has delivered so many lectures and published so many articles, and as a resource person, mainly the program is Avadhanam. So Dashavadhana, Ashtavadhana, Gantavadhana, Yugalavadhana, and so many Avadhanas conducted by him from all over the India, Gujarat, Bangalore, and Karnataka, Nanded, Maharashtra, Sringeri, and various states. We are very fortunate to have him to deliver Vaividya Mimamsa, and I request Ma'am ji, Surabhi Ma'am ji, to deliver your lecture on the process of remembrance. Mic needs to be hold. Okay. सभी को नमो नमः, सादर प्रणाम। मेरा वक्तव्य हिंदी में रहेगा, बीच में मैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस कर दूंगी ताकि सभी लोग समझ सकें। अवधान, द साइंस ऑफ लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग, ये सब्जेक्ट मेरे को बाल्यकाल में इंट्रोड्यूस हुआ था।
सन 1980-90 के मध्य की बात है। मेरे फादर ने बहुत सारे अवधांस विटनेस करे थे बाय जैन सेंट्स, और वो देखने के बाद उनको ये इच्छा हुई कि ये चीज़ जाननी चाहिए, देखनी चाहिए क्या चीज़ है, कैसे होती है, हाउ माइंड कैन बी सो पावरफुल. So I begin with paying regards to my father, late Shri Siddharth Bhagat ji, and सभी गुरु जिनको सामने रख के हमने ये चीज़ सीखी है एक एक करके. सबसे पहले मैं बात करती हूँ आचार्य तुलसी. ही हैज़ बीन पॉइनियर इन तेरापंथ जैन समाज, और 1980-90 के दशक में इन्होंने बहुत सारे अवधांस पब्लिकली किए थे. शतावधान, 500 वाले जो अवधान होते हैं, 1000 वाले, सस्तार अवधान. एंड उन्हीं के शिष्य हैं आचार्य महाप्रज्ञ, जिन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया. पर ये सारी चीज़ें गुरु परंपरा से केवल जो साधु होते थे या साध्वियाँ होती थी उन्हीं को दी जाती थी. सो इट टुक अस अराउंड अ लॉन्ग टाइम ऑफ 11 to 15 ईयर्स. हमने महाराज साहब से रिक्वेस्ट करी, बाल्यकाल से शुरू करी, जो कि शायद मेरे को जवानी में आके उन्होंने निर्देश दिया, और कुछ अवधान सीखने का मुझे मौका मिला जिनके बारे में मैं आज बताऊंगी. ये करंट आचार्य हैं, आचार्य महाश्रमण जी. इन्होंने अनुमति दी और कुछ अवधानों को मैं सीख पाई. सो द मुनि कुमार श्रमण जी, जिनसे हमने अवधान सीखी, और हमारी गुरु मैया साध्वी श्री अशोक श्री जी. सो 2014 was that golden year जबकि अवधान लर्निंग फ्रॉम साधुज एक गृहस्थ को सिखाई गई इन द जैन ट्रेडिशन परंपरा, और केवल मुझे सिखाया गया था, मुझे सिखाने की अनुमति नहीं है. मैं इनके बारे में आपको बता सकती हूँ क्या है, पर कैसे किया जाता है, उसका क्या विज्ञान है, ये गुरु आदेश नहीं है. ये विटनेस किया था मैंने बाल शतावधान. ये भी एक जैन सेंट हैं, इनके बारे में मैं बताऊँगी. ये नए चंद सूरीश्वर महाराज साहब हैं, और ये उनके बाल मुनि हैं. इनकी एज अराउंड 8 या 9 ईयर्स है, और इन्होंने 2014 में 22 जून को मुंबई में शतावधान प्रस्तुत किया था. और इसका हम पूरा डेमो भी देखेंगे, क्या क्वेश्चंस या कैसे क्रम अरेंज किया गया था शतावधान का. देन रिसर्च शुरू हुई कि जाना जाए कहाँ, कोई पुस्तक मिल जाए, कुछ तो मिल जाए. तो ये जैन विश्व भारती लाडनू है, जो कि तेरापंथ का हेडक्वार्टर्स है राजस्थान में. वहाँ की लाइब्रेरी में एक पुस्तक थी जिसको खोजने के लिए मैं अपने पिताजी के साथ गई. वो पुस्तक तो नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी. देन सितंबर 2014 के अंदर आध्यात्म साधना केंद्र में महाराज साहब का चौमासा था. एंड एक बार गए, मना कर दिया, 2 बार गए, मना कर दिया. तीसरी बार में अंततः उन्होंने 2 अवधान सिखाने की अनुमति मुनि कुमार श्रवण जी को दी, और 2 से आगे चलते चलते कुछ और आगे बढ़ा. तो 2 टेक्निक्स मैंने सीखी, मैं बताऊंगी कौन कौन सी थी. एंड उसके बाद अक्टूबर 2014 में उन्होंने विधिवत से गुरु माता के आदेश से भिक्षु साधना केंद्र जयपुर स्थान है, जहाँ पे आरिका अशोक श्री जी महाराज ने मुझे अवधान सिखाए. और उसके बाद मैंने पुनः आगे और अवधान सीखने के लिए महाराज साहब के दर्शन करे आगरा में 2014 में दिसंबर में, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया, बस इससे और आगे नहीं. तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी, ये तो आगे की चीज़ें हैं. नेक्स्ट. सो प्रेजेंटेशन में मैंने ऐसे प्लान किया है, सबसे पहले मैंने क्या सीखा वो मैं बताने वाली हूँ. उसके बाद व्हाट आई हैव विटनेस्ड, देन रिसोर्सेज क्या क्या उपलब्ध है अवधान में, लिखित में या अदर सोर्सेज में, रिसर्च वर्क मैंने इसमें क्या क्या किया है, डेमो ऑफ फ्यू अवधान, क्विक अवधान जो मैं अभी कर सकती हूँ, एंड टेक्निक ऑफ अवधान, हम एक आध अवधान की टेक्निक भी डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं अवधान्स विच आई लर्न बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ आचार्य महाश्रमण जी. सबसे पहला अवधान जो बहुत कॉमन होता है, और ये एक शतावधानी को आता ही है, जो 100 चीज़ों को एक साथ लर्न करते हैं, वो होता है रिमेंबरिंग ऑफ लॉन्ग नंबर्स. पूरी सभा में से सब लोग एक एक करके नंबर बोलते जाते हैं, कोई 10 बोलेगा, 20 बोलेगा, 15, 25, 28, एंड शतावधानी उसको पूरी तरह से याद कर लेता है.
सीधे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग हो एग्जैक्टली बता सकता है। तो इसकी भी टेक्निक होती है, ये मैं अंत ऑफ द प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कैसे होती है। नेक्स्ट गणितीय अवधान होते हैं जो हमें देखने में जादू जैसे लगते हैं। इसे बोलते हैं जोड़ का गुप्तांक। जोड़ का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का गुप्तांक मीन्स जो हमने अंक को गुप्त कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने डैश लगाया है, दैट मीन्स इट इज जोड़ का गुप्तांक। इसको किया कैसे जाता है? रो 1 पहली संख्या पहले धीरे धीरे बोली जाती है, जैसे 398 बोला तो अवधानी उसको ग्रहण कर लेता है और अपना प्रोसेस भी कर लेता है। यहाँ पे हम मैथमेटिकल प्रोसेस कर लेते हैं। इसका डेमो चाहेंगे तो मैं करके दिखा सकती हूँ। फिर दूसरी लाइन बोली जाती है रो नंबर 2, फिर रो नंबर 3 बोली जाती है और उसके बाद आप जो जोड़ है उसको बोलते हैं जो आपने एक चीज़ छुपाई है। और इनमें भी नियम होते हैं, कई सारे जो गुप्तांक वाले होते हैं उनमें 0 और 9 को नहीं छुपाया जाता बिकॉज ये गणित के प्रयोग हैं। और ये चीज़ आप ध्यान में कर लेते हैं, इसका एक्स क्या निकला मीन्स इसका आंसर क्या निकला है, उस समय नहीं बताना होता। ज़्यादातर जब 100 अवधान पूरे कर देते हो अंत में आप सारे आंसर्स देते हो। ये है जोड़ का गुप्तांक मीन्स एडिशन का, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। इसी तरह से गुणन मीन्स मल्टीप्लिकेशन का भी हम गुप्तांक निकाल सकते हैं। और एक बार सुनने में इसमें रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता क्योंकि इतना अभ्यास अवधानी को करा दिया जाता है। नेक्स्ट बाकी, बाकी मीन्स माइनस कर रहे हैं इसके अंदर हम, तो जैसे पहली रो बोली जाएगी फिर दूसरी रो बोली जाएगी, ऐसे आपकी मल्टीपल रोज हो सकती हैं एंड देन लास्ट में आपका रिजल्टेंट रहता है और उसमें से कोई भी आप छुपा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई तीसरे नंबर का छुपाना है, आपकी इच्छा जो आप छुपा सकते हैं एंड यू कैन आस्क कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाग, डिवीजन का गुप्तांक। डिवीजन जिसके अंदर हम इंग्लिश में बोले तो हमारे पास क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है और डिवाइजर एंड डिविडेंड होता है। उनमें से भी हम नंबर मिसिंग फाइंड करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके लिए तो मैं माला भी साथ में हाथ में लाई थी पर बहुत लंबी इसकी कैलकुलेशंस है, लाइव नहीं कर पाऊंगी। माला के मनके का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, 8 या 9 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो माला फेर रहे हैं। जो सामने अवधानी होगा वो कौन सा व्यक्ति कौन सी हाथ में, राइट में है या लेफ्ट हैंड में है, वो कौन से पोरवे पे, मतलब पहले तो कौन सी उंगली, ये उंगली कहाँ पे है, माला इस पे कौन सी, पांचों में कौन सी उंगली पे, फिर कौन सा पोरवा और माला का कौन सा मणका। 108 में से वो 54 नंबर फेर रहा है या 56 फेर रहा है, वो भी वो थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर देते हैं। और ये बहुत ही सुपर व्यवधान है, इसकी पूरी लॉन्ग प्रोसेस है। ये बहुत कॉमन है आजकल, बहुत सारे मेमोरी पावर ट्रेनर्स भी कराते हैं, विच इज़ वार बताना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे और जो अवधानी होगा बता देगा कि आप जब पैदा हुए थे तब कौन सा वार था, कौन सा डे ऑफ द वीक था। सो दिस इज़ वार बताना। द नेक्स्ट अवधान इज़ गणित के मैनी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, यहाँ मैंने मेंशन नहीं करे। उसके अंदर 2 या 3 लोगों को बैठाया जाता है, अलग अलग कैलकुलेशंस उनसे करवाई जाती है और सबको अलग अलग कैलकुलेशंस करा के भी सेम रिजल्टेंट आंसर आ जाता है। सो इट इज़ मोर ऑफ एन एक्टिविटी एंड अ फन विच इज़ इंक्लूडेड इन अवधान। अवधान नंबर 9 इज़ भद्रोत्तर यंत्र। ये जितने भी भारतीय संस्कृति में यंत्र बताए गए ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। जैसे हम श्री यंत्र देखते हैं, सर्वतोभद्र यंत्र है, महासर्वतोभद्र यंत्र है, गणेश यंत्र, जितने भी यंत्र है दीज आर वेरी पावरफुल फिनोमिनास। और ये भद्रोत्तर यंत्र जो होता है ये नंबर्स का होता है, 5x5 की मैट्रिक्स होती है और उसको सॉल्व करने की टेक्निक होती है इसमें। इट इज़ ऑल अगेन वेरी मच मैथमेटिकल और उसमें मिसिंग नंबर्स आपको दिए जाते हैं एज एन अवधानी, यू हैव टू फिल इट एंड टेल टू द ऑडियंस। अवधान 10 जिसमें लर्निंग ऑफ द श्लोकास या फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सिस्टम रहता है, जैसा कि हमने सर के वक्तव्य में देखा था, क्रिएशन ऑफ श्लोका या लर्निंग ऑफ द श्लोकास। इसमें आपकी मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर चाहिए होती है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। इसमें आप जब बाकी चीज़ें अभ्यास करते हैं आपकी स्मृति इतनी तीव्र हो जाती है कि आप स्वतः ही उसको धारण कर पाते हैं, धारणा कर पाते हैं। नेक्स्ट, यस, ये बहुत ही क्विक है, इसका डेमो मैं दूंगी। इसमें आप फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है बताती हूँ। जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, अभी हमको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी चीज़ का, तो हम यहाँ इस सिंबल में 2 लिखते हैं और मान लीजिए 2 × 2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा।
इसी तरह से फिफ्थ रूट का मतलब होता है कि हमको पांचवा रूट निकालना है। अगर आप इसको मैनुअली निकालने बैठेंगे तो आपको कैलकुलेटर से तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो आपको शायद घंटे बीत जाएं और फिर भी आंसर नहीं आए, लेकिन इसका सिर्फ चुटकियों में आंसर अभी मैं डेमो में दूंगी। सो दिस इज फाइंडिंग द फिफ्थ रूट ऑफ द नंबर। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट इज महासर्वतोभद्र यंत्र। ये भी यंत्र होता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है और इसकी पूरी कैलकुलेशंस होती हैं, वेरी डिटेल्ड। यस, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग अवधान है जिससे आपको ऐसा लगता है बिल्कुल मैजिक हो रहा है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तकें रखी हुई होंगी यहाँ टेबल पे, 5-7 पुस्तक रखी हुई हैं, उनमें से आपने कौन सी चूज करी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप ही से कराएगा अवधानी। कौन सी तो पुस्तक है जो रखी हुई 5-6 पुस्तकें, उनमें से आपने कौन सी पसंद करी है। पुस्तक के बाद कौन सा पन्ना पढ़ रहे हो, कौन सी लाइन पे हो और विच वर्ड यू आर रीडिंग। आपको ऐसा लगेगा कि हम आपके दिमाग के अंदर देख सकते हैं, पर ये पूरी तरह से मैथमेटिकल है और वेरी लॉन्ग कैलकुलेशंस इसमें करी जाती हैं और ये परफॉर्म किया जाता है इन शतावधांश। देन स्क्वायर रूट एंड नेक्स्ट इज क्यूब रूट। तो मैथमेटिकल अवधांश बहुत सारे होते हैं, तो ये कुछ 15 अवधांश की टेक्निक्स मैंने सीखी थी गुरु आशीर्वाद से। अब मैं वो बतानी चाह रही हूँ जो अवधान परफॉर्मेंसेस मैंने विटनेस की इन जैन मॉन्क्स, और उनका क्या क्रम रहता था। जो शतावधांश होते हैं वो भी टेक्निक वाइज होते हैं, तो हम उस टेक्निक को थोड़ा डिकोड करेंगे कि वो कैसे होते हैं। देखिए, ये बाल शतावधान है। दिस मुनि इज अराउंड 8 to 9 years old और 100 चीज़ें उन्होंने रिकलेक्ट करी, सुनी और बताई। क्या क्या 100 थी अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ मैं। तो 100 अवधांश को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके बहुत फॉर्मेट्स होते हैं। एक फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ जिक्र करने वाली हूँ। देखिए, अवधान सीक्वेंस या क्रम होता है जो अलग अलग गुरु अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो अवधान करवाने वाले हैं, जो गुरु हैं, वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 सीक्वेंस में 10 चीज़ें एक के बाद एक जो पूछेंगे आप, उनमें हो सकता है आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया हुआ 11 से बीच में आप अपोजिट पूछेंगे। ठीक है, वो पहले से आपको चार्ट दे दिया जाता है इन द ऑडियंस, व्हाट यू कैन आस्क एट व्हाट क्वेश्चन नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसमें 21 नंबर पे था कि गीता के 15वें चैप्टर का कोई भी एक श्लोक आप पूछ सकते हैं। देन 22 to 30 था एनी सुवाक्य या सेइंग या प्रोवर्ब्स। 31 पे मैथ्स का कोई गेम था जो मैंने आपको चर्चा करी। जेन्स, नॉन जेन्स एंड होली टेक्स्ट, फिलेंट्रोपिस के नेम्स 32 to 40 में डिज़ाइन थे। 41 में मैथ्स थी अगेन। 42-50 में साइंटिस्ट का, किसी भी साइंटिस्ट का दुनिया के आप नाम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि उनको ये याद करना है कि 42वें नंबर पे आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला, तो आफ्टर द सीक्वेंस ऑफ 100 गेट्स कंप्लीटेड आप 42 बोलें और अवधानी बोलेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको वो नंबर भी याद रहता है, क्या प्रश्न था वो भी याद रहता है और वो उत्तर भी देते हैं। नेक्स्ट 51 में यहाँ पे कोई शास्त्रीय राग। देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें आ गई, मैथ्स आ चुकी है, मेमोरी आ चुकी है, राग आ चुका है। देन 52 to 55 इज पंच प्रतिक्रमण सूत्र। ये जैन सूत्रों होते हैं प्रतिक्रमण के, उनके सूत्र पूछे जा सकते हैं। देन लैंग्वेज एबिलिटी, जैसा आज अभी हमने देखा था घंटा अवधान में अलग अलग लैंग्वेज उन्होंने डिकोड करी थी, उस प्रकार से ही अवधानी लैंग्वेज एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। देन व्युत्क्रम दर्शन अवधान, जो दर्शन होता है ना, आपने कंटिन्यूस फटाफट कोई चीज़ें दिखाई, उनको ग्रास्प करना है कि आपने मान लीजिए 61वें नंबर पे एक सिंह दिखाया, 62वें पे आपने कैमरा दिखाया, तो उनको सामने जो आप दिखा रहे हो उसको ग्रास्प करना है। एनीबडी इन द ऑडियंस कैन डू दैट, वो यहाँ पे ग्रास्प किया जाता है। 71 से 85 तक मान लीजिए वो एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड के आप 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर एज पर द सीक्वेंस पूछ सकते हैं। अलग अलग वर्ड्स आप बोल सकते हैं, द अवधानी विल रिटेन देम। 86 to 90 फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ये जो डिज़ाइन किया हुआ था उसका मैं सैंपल बता रही हूँ। गुप्तांक, जो मैंने भी आपको बताया उस तरह के गुप्तांक के क्वेश्चंस थे। सर्वतोभद्र यंत्र के थे, डंका के थे, कोड़ी के थे। डंका मीन्स
जो साधु जी बैठे थे उनके पीछे डंका बजाया गया, कितनी बार वो घंटा या नाद हुआ वो उनको रिमेंबर करना है। कोड़ी के गेम्स का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अवधान गेम, वो था। देन 91 to 92 दो क्वेश्चंस थे ताल के, 3 ताल, 1 ताल बजाई जाती है और वो क्या ताल उस समय बजाई गई। फॉर एग्जांपल 91 पे 3 ताल बजाई गई है, तो व्हेन ही विल बी रिकॉलिंग ऑल दोज 1 to 100, शतावधानी तभी कहलाते हैं जब आप 1 से 100 को आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी बता सकते हैं, देन यू आर गिवन द टाइटल ऑफ शतावधानी। बहुत दुर्लभ उपलब्धि है, बहुत साधना का विषय है। 93 to 98 यहाँ पे था शीघ्र दर्शन अवधान, अगेन फटाफट इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स, फोटोज दिखाई जाएंगी। एंड 99 to 100 आगम पाठ इज अगेन मंत्रास एंड टेक्स्ट। तो ये एक पीछे ले लीजिए एक बार, 1 से 100 को इन्होंने क्रमबद्ध डिवाइड कर दिया है, ये एक पैटर्न बना दिया जाता है। अब ये 1 से 100 तक कौन याद रख सकता है? अभी इधर ऑडियंस में कौन कौन, मतलब जो शतावधानी है उनके अलावा कौन याद रख सकता है सीक्वेंस में? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? कोई भी? पॉसिबल तो है ना, तभी तो शतावधान हो रहे हैं। एंड आई विल लाइक टू टेल यू, आप में से सब लोग जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जितने एडल्ट्स बैठे हैं, आप लोग सब बहुत सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम करवा रहे हैं, हमने करवाई हैं बच्चों को भी शीघ्रता से सारी चीज़ें याद करने की टेक्निक। तो उसमें थोड़ा रिसर्च किया था, आगे चलते हैं। तो ये मैंने विटनेस किया, एक था बाल शतावधान। नाउ दिस इज 500 अवधान से एट अ टाइम। इस पूरी प्रक्रिया को सुबह से लेकर शाम तक में किया गया था। इट वॉज इन वर्ली स्टेडियम इन मुंबई ऑन 16th of November। अगेन इट इज़ बाय अजित चंद्र सागर जी महाराज साहब, ये हैं अभी भी। ही इज़ अ वेरी यंग सेंट। जब मैंने इनका अवधान विटनेस किया था, ही वॉज अराउंड 21 या 22 ईयर्स ऑफ एज। अभी 10 साल पुरानी बात है, तो 32 के हो गए होंगे। एंड जो मेन महाराज साहब इनके गुरु हैं वो हैं नए चंद्र सागर जी, और जो बाल शतावधान था वो भी इन्हीं के शिष्य का था, नए चंद्र सागर जी का। ये मैंने उनकी कुछ क्लिपिंग्स जो मेरे पास थी मैंने लगाई हैं। एंड इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई कि कैसे होता है, क्या होता है। मैनी वेस्टर्न पीपल हैव डन द रिसर्चेस ऑल्सो। देन सहस्त्र अवधान इज 1000 अवधान, मीन्स एक साथ 100, 500 और 1000। सहस्त्र अवधान की जो टाइटल थी, आज से 500 साल पहले राजा भोज के कोर्ट में मुनि सुंदर सुरेश्वर महाराज साहब थे। इसके अलावा जैन सेंट में बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। यशो विजय जी महाराज साहब हैं, और अभी भी करंट में बहुत जैन सेंट है, बिकॉज वो परंपरा से आ रहा है और केवल साधुओं को सिखाया जाता है। नेक्स्ट, ये प्रयोग हुआ था जिसके अंदर आगम मुनि हैं, जो मैंने महाश्रमण जी बताया, उन्हीं के शिष्य थे महेंद्र मुनि। एंड उनके शिष्यों ने किया था 1000 अवधान, एक साथ 1000 अवधान उन्होंने किए थे सुबह से लेकर शाम तक, विच इज़ अ रीसेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट, सो दिस इज समथिंग विच आई हैव विटनेस्ड। अब मैं कुछ रिसोर्सेज की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज उपलब्ध सहजता से नहीं है। पहली चीज़, ये डिटेल्स या अवधान की जानकारी जैन समाज में, तेरापंथ समाज में है। आचार्य महाश्रमण जी उनके हेड हैं, और महाराज साहब की कृपा से ही ये जानकारी ली जा सकती है। सेकंड, गच्छ जिसे मैं जानती वो है मुनि श्री नयचंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, बट उनसे कोई जानकारी मैं भी नहीं ले पाई हूँ। वो केवल अपने साधुओं को सिखाते हैं, बट दे हैव ह्यूज नॉलेज। ये जो मैंने अवधान की आपको बात करी, बाल शतावधान एंड 500 अवधान, ये उन्हीं के संघ के यंग साधुज ने किया था। एंड ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, बट इसकी बुक्स अब अवेलेबल नहीं है। ये है, गुजराती राइटर हैं धीरज लाल टोकरशी शाह। ही इज़ ऑल्सो अ शतावधानी, अभी नहीं है। इनकी बुक्स 1900 सेंचुरी में पब्लिश हुई थी। दे आर ऑल इन गुजराती, बट इन्होंने बहुत काम किया और मंत्र साधना, नवकार साधना एंड अवधान, स्मरण कला, बहुत चीज़ों पे इन्होंने काम किया है। इनकी बुक्स में एग्जैक्ट फॉर्मेट्स हैं, लेकिन बुक्स उपलब्ध नहीं है। तो शायद अगर हमें कहीं किसी लाइब्रेरीज में मिल जाए पुरानी, तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल। एंड कन्नड़ की जो हमारे भी गेस्ट आने वाले हैं मिस्टर गणेश, उनके जो अवधान्स हैं वो कन्नड़ में बहुत हैं, इन द पोएटिक लैंग्वेजेस, जिसकी मुझे जानकारी थी, जो मैंने यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास किया है।
दिस इज़ वन ऑफ द बुक ऑन स्मृति विज्ञान विच टॉक्स अबाउट प्रिलिमिनरी थिंग्स ऑफ अवधान। ये पुस्तक मेरे पिताजी के पास मेरे जन्म के पहले से थी, और यही एक जिसे कहते हैं ना ट्रिगर पॉइंट, कि मैंने क्यों सीखा या मुझे इसमें क्यों इंटरेस्ट आया। हमारे परिवार से कोई नहीं जानता था अवधान, ये जस्ट क्यूरियोसिटी से हमने सीखा। एंड इस चीज़ के रिसर्च वर्क के लिए हमने अवधान फाउंडेशन और अवधान माइंड पावर करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की थी 2012 के अंदर, अलॉन्ग विद माय फादर। ये उसी का ब्रोशर है जिसमें हमने क्या किया था। नेक्स्ट, अवधान ग्राफ्स फॉर क्विक लर्निंग। दिस कंपनी वाज ऑन क्लास 6 to 12th के एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। उसके बाद हम कैप्सूल नोट्स की फॉर्मेट में अवधान ग्राफ्स देते थे। एक सैंपल आप ग्राफ देख रहे होंगे जिसमें सेंटर आइडिया प्रिंसिपल रहता था, फिर उसकी कलर कोडिंग्स होती थी, एंड एक चित्र में ही पूरा का पूरा आपका चैप्टर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिपिक्ट कर दिया जाता था, विच वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ LRR साइंस विच वी कॉल लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग। इसमें हमने बहुत काम किया एंड इट वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा आप लोगों को ही पूछती हूँ कि आप कोई भी नंबर दीजिए 6 डिजिट तक का जिसका आप 5th रूट निकलवाना चाहते हैं। एनी नंबर 6 अंक तक का जिसका आप 5th रूट निकलवाना चाहते हैं। सो क्विकली आई कैन टेल यू व्हाट वुड बी द आंसर। 5th रूट जैसे ये होता है ना 5वां रूट, उस तरह से। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट, इट शुड बी कंप्लीट होल नंबर, एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव। इट हैज टू बी अ होल नंबर, मतलब रैंडम नंबर नहीं दे सकते आप, जिसका निकलता हो वही दे सकते हैं। तो पहले के कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर मैं आंसर बता दूंगी। प्लीज पार्डन। मैम दिस इज अ रैंडम नंबर, इट इज नॉट। आई वॉन्ट एग्जैक्ट जिसका 5वां रूट निकलता हो। जैसे मैंने कहा 32 का 2 होगा, उस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट नंबर देना होगा जिसका आप मुझसे 5वां रूट जानना चाहते हैं। इट कैन बी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। सो इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक। इसमें कोई भी धारणा की आवश्यकता नहीं, इट इज़ अ सिंपल टेक्निक जो अवधान में प्रयोग की जाती है। अवधान में मैथ्स के अवधान बहुत होते हैं, गणित अवधान बहुत पॉपुलर है। 59049, right? 9 is a 5th root. Please pardon, एक second. It has to be a complete number. मैं लिख लेती हूँ एक बार आपके सामने। हाँ बताइए। 16 नंबर बोलिए। 8077। अब एक 6 डिजिट का भी ट्राई कीजिए। 4665 6 12. Okay, so this is one of the technique of 5th root finding. ये 10 डिजिट तक पॉसिबल है अभी। हाँ 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 श्योर। 6 डिजिट आगे का भी हो सकता है। ये इट इज 7 डिजिट नंबर जो आप बता रहे हैं। 6 डिजिट तक का बताइए। 6 डिजिट तक का बता दीजिए, क्योंकि आगे की तकनीक अलग है, मैंने अभी इतना अभ्यास नहीं किया हुआ उनका। सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। 2 डिजिट आप जो बोल रहे हो उसकी अलग टेक्निक है, इसी में 3 की अलग, 4 की अलग, सबकी अलग टेक्निक है। तो आप 6 डिजिट तक का भी पूछ सकते हैं मेरे से, कोई सा भी। फोर 11। इसमें या तो आपका ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन मुझे बताया है वो गलत है। आप मल्टीप्लिकेशन आप
चलिए, एनीवेज नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ अवधान. टेक्निक ऑफ अवधान में लॉन्ग नंबर्स को रिमेंबर कैसे करते हैं, क्योंकि इससे आपके वो सहस्त्र, 500 या 1000 अवधान होने वाले हैं. तो उनके लिए क्या किया जाता है उसको मैं समझाना चाहूँगी. कोई समझना चाहता है या सब लोग अभी अंतिम सत्र है तो नींद आ गई? पक्का? एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एजुकेशन. बिलीव मी, मैंने अपनी पूरी एजुकेशन में इसको यूज़ किया है और मैं सर्वदा गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ. इवन इन योर CSU दिल्ली, मैं वहाँ की भी स्टूडेंट रही हूँ आफ्टर मैरिज, वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल लिया है, क्योंकि ये अवधान मुझे बचपन से आते थे, टेक्निक्स आती थी. अब देखिए ये बड़ा सारा नंबर है, अपन को एक सैम्पल नंबर लिखते हैं, फिर करके देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स काम में आती हैं. चलिए, अब आप लोग रैंडम नंबर्स जो बोलना है बोलिए, फिर हम इसकी टेक्निक बताएंगे. बोलिए एनी नंबर. 8, 5, 7. एक जना बोलो ना. 38 लिख, क्या लिखूं 7 के बाद? 38. ओके, 3, 8, हाँ, 9, 1, 0, 5. बस थक गए सब? 7. एक जने को एक ही मौका देते ना. अगला 2, 3, 4, 7. और करें 6. अच्छा, अभी इसको कौन पढ़ के बता सकता है मेरे को? मतलब पढ़ के और बिना देखे बता सकता है? अभी लिखवाया तो इसीलिए था ना मैंने. चलिए, अब इसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं. सबसे पहला होता है कल्पना शक्ति का. उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं. ठीक है, जैसे एक सैम्पल, इट कैन बी एनीथिंग रैंडम. ठीक है, इमेजिनेशन को हमारे को बहुत अच्छे से काम में लेना होता है. जैसे 8 गांव थे, वहाँ पे 5 साधु थे, उन्होंने सप्तऋषियों की पूजा करी, और 3 युग थे, तीनों युग में करी सप्तऋषियों की पूजा. तो अब आप बताइए, पीछे की याद हो गया आपको? 8 गांव थे, ठीक है, 5 साधु थे, सप्तऋषि की पूजा करी, 3 युग में करी. मैंने तो नहीं याद करा, आपने किया. सिमिलरली पूरी सीक्वेंस याद कर ली जाती है, पर इसकी एक लिमिटेशन होती है. 15-20 के बाद इतनी अपनी इमेजिनेशन चलती नहीं है. तो फिर क्या करें, जब ये पूरा बोर्ड मैंने भर दिया, मान लो आपको 100 अंक यहाँ पे दे दिए गए, तो उसके लिए टेक्निक नंबर 2 काम में आती है. 1 इज इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेक्निक, जिसमें कि एवरी उससे हम अलग अलग जोड़ के, जैसे हमने यहाँ पे सब तक आ गए थे, फिर हमने देखा था वापस वो अपने 8 गांव पे आ जाते हैं तीनों युग में घूम के, वापस 8 पे आ गए. फिर हम आगे से आगे हमारी कल्पना शक्ति को, कल्पना से अवधान होता है. योर मेमोरी, योर कल्पना एंड योर धारणा इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज हाउ इट इज डन. सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड के अंदर ये होता है, एक बार सर नेक्स्ट कर दीजिए. फर्स्ट जो नंबर्स होते हैं उनको अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मेरा नाम सुरभि है, अब मैं आपको एक नंबर देती हूँ 6 डिजिट का, 4, 5, 8, 9, 2, 6. क्या याद रहेगा, सुरभि याद रहेगा या ये नंबर याद रहेगा आपको? नाम रहेगा. तो वही इस टेक्निक में किया जाता है. टेक्निक नंबर 2 में जो हर अवधानी को काम में लेनी होती है, सहस्त्रार या हम 100 अवधान करते हैं. सो योर नंबर्स आर कन्वर्टेड टू वर्ड्स. ठीक है, उसकी टेक्निक होती है कि 0 से 9 के लिए एक फिक्स फॉर्मेट दिया हुआ होता है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है. अब उनसे क्या होता है, फिक्स अल्फाबेट्स आर असाइंड फॉर 0 to 9. एक सैंपल देखते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनके लिए पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स फिक्स होते हैं. अभी इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं. जो हमारे शास्त्र में है अवधान की, उनमें हिंदी वाले दिए हुए हैं क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं, और इंग्लिश में भी होते हैं. उनसे क्या होता है, एडवांस के अंदर मेमोरी हुक्स क्रिएट कर लिए जाते हैं. 0 से 9 तक के तो पर्टिकुलर शब्द बना लेते हैं, फिर हम 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 जितने भी 100 तक की गिनती है उनके हम शब्द बना लेते हैं. जैसे 1, 1 का लिखना है तो यहाँ मान लीजिए हमारा M आ रहा है,
एम और एम मिक्स करके हम वर्ड बना लेंगे, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश का, हिंदी है तो हिंदी का। इस प्रकार से जो यहाँ प्री डिफाइंड अक्षर दिए हुए हैं उससे शब्द पहले बना लिए जाते हैं ग्रहण करने के लिए, ये कार्य करना पड़ता है। तो ये 100 तक 500 तक बना लिए जाते हैं। और ये जब मेमोरी हुक आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे ना कि 55 क्या था, तो आप वही बोलोगे जो आपने हुक बनाया हुआ है। ये सबके अपने पर्सनल भी होते हैं। एंड उसके बाद व्हेन द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड, जो हमने 100 की सीक्वेंस बात करी अभी अवधान आई विटनेस्ड में, तो 55 नंबर का आपको हुक पता है। मान लो 55 नंबर का आपका हुक बना लॉयन, फॉर एग्जाम्पल इट इज लॉयन, तो लॉयन के ऊपर आप क्या करोगे, वो जो आंसर आपका आया था वो अटैच कर दोगे। कंफ्यूजन इसमें? तो ये मेमोरी हुक्स पहले तैयार कर लिए जाते हैं फॉर लॉन्ग नंबर्स। तो उसके बाद कभी भी कोई रैंडम भी पूछे 1 से 100 तक में, तो आप बता सकते हैं 98 पे क्या चर्चा हुई थी, 45 पे क्या थी, 82 पे क्या हुई थी। दिस इज हाउ एन अवधान परफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड। और इस प्रकार से ये जब टेक्निक्स हमको आती है तो हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है और हमारी परीक्षा में नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। कुछ और है अभी 2 मिनट बताने का। सो वी मेक मेमोरी हुक्स एंड देन वी एड न्यू इंफॉर्मेशन टू प्री लर्नड मेमोरी हुक्स। नेक्स्ट, इसकी एक राइम टेक्निक भी चलती है। अब ये सारी चीज़ें बहुत बचपन से काम में ली जा सकती है। जो मैं आपको वूम टेक्निक बोल रही हूँ, मेरी बिटिया 4 साल की है अभी, और ये जो टेक्निक्स है मैंने उसको अभी से सिखाना शुरू कर दिया है और अपने आप वो अवधान की लर्नेबिलिटी आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए ग्राइम टेक्निक। इट इज माइट नॉट बी अ अवधान टेक्निक बट इट इज क्रिएटेड। सो 1 सन, 2 1, 3 ट्री, 4 डोर, 5 5, इस प्रकार से ये हमने ये 10-20 से ज़्यादा नहीं जाती राइम टेक्निक। नेक्स्ट, एक और टेक्निक होती है जिसे नंबर शेप मेथड बोला जाता है। देखिए 1 कैसा दिखता है अपने को, डंडे जैसा दिख रहा है ना, स्टिक जैसा, 1 स्टिक जैसा दिख रहा है। 2 वो बतख जैसा दिख रहा है, स्वैन होती है, दिस इज कॉल्ड एज नंबर शेप मेथड। 3 कैसा दिख रहा है, सी वो चश्मे होते हैं ना, जैसे इसके चश्मा है, देखो स्पेक्टिकल जैसा दिख रहा है ना 3। सो ये नंबर शेप मेथड से आपको पहले के ये हुक्स 20 तक के यूजली होते हैं वो याद होते हैं, उनके साथ अपनी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन अटैच कर देते हो। नाउ दिस इज वाइडली यूज इन स्टडीज़। आपको कोई 10 भेद याद करने हैं, 15 पॉइंट्स याद करने हैं, मे बी ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के करने हैं, संस्कृत के करने, यू पुट इन दैम इन द हुक्स। नेक्स्ट, सो आई वुड बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू रिसर्चेस। और ये सारी चीज़ें हम प्रेग्नेंट मदर्स को कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ अवधान ग्राफ्स, विच इज़ समथिंग आफ्टर रिसर्चेस वी क्रिएटेड, एंड वो बहुत एक्सीलेंट मेथड है ऑफ रिमेम्बरेबिलिटी एंड रिकॉलिंग। उसमें एक पर्टिकुलर शब्द माता को दिया जाता है, जैसे मैंने माँ दिया, और उसके बाद उस माँ शब्द से उनके 10 मेजर टॉपिक्स निकलते हैं, उन 10 के आगे 10 निकलते हैं, तो वो जो मेमोरी सर्किट्स होते हैं वो बिल्कुल नर्वस सिस्टम की जैसे बन जाते हैं, जो हमारे नर्व सेल्स हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, मेमोरी, कॉग्निशन डेवलपमेंट दैट वी डू विद प्रेग्नेंट मदर्स। और ये जो टेक्निक्स हैं, राइमिंग सिस्टम, मेमोरी हुक्स एंड ऑल, वी स्टार्ट विद द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ द बेबीज। So this is all I wanted to share. Thank you so much for listening. Abhar. Thank you, Surabhi Bhagat, for this beautiful presentation. हमारा जो रिसर्च है अवधान पर, उसका यही है परिणाम कि प्रैक्टिकली हाउ डू वी ब्रिंग इट टू द क्लासरूम सिचुएशन। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया है। एंड the other important thing which she mentioned towards the end कि जो जैसे अवधानियों को मतलब जन्म से पहले ही जैसे अभिमन्यु ने सीखा था, जैसे अष्टावक्र ने सीखा था, तो जन्म से पहले भी अवधानियों का निर्माण किया जा सकता है ना। हम मानते हैं, अगर अभिमन्यु की बात मानते हैं, अष्टावक्र की बात मानते हैं, तो जो कपल्स होते हैं, आप अगर चाहो कि आपका बच्चा भी अवधानी बने तो ये कर सकते हैं, ये करके दिखाया जा सकता है। तो एंड इट्स वी अलाइन विथ ईच अदर फॉर लास्ट 20 years। आई टेल यू दैट बोथ द सब्जेक्ट्स अवधान एंड प्रीनेटल एजुकेशन बोथ आर माई इंटरेस्ट
and it is her interest also. And then I didn't know her. I mean, I'm meeting her first time here and listening to her first time. But it's going to be a very great collaboration, that where we will be working together. So I invite you to our university, and we'll work together and then create a program by which, you know, like we can take this into the classroom. ये अवधान का प्रैक्टिकल जो व्यावहारिक पक्ष है, जिसको हम अवधान देखते हैं, बहुत ग्रेट माइंड है, अवधान देखते हैं, लगता है कि इट्स मेस्मराइज्ड, अनबिलीवेबल, इसको बता नहीं सकते हैं, कितने बड़े विद्वान लोग होते हैं, कितने अच्छे स्मृति शक्ति होती है, पर वो स्टेज तक सीमित रह जाता है। स्टेज से हम क्लासरूम तक नहीं ले पाते हैं, लाइफ तक नहीं ले पाते हैं। जीवन को, जगत को, शिक्षा को जोड़ना है इसके साथ, तो उसके पीछे जो साधना है उन लोगों की, जैसे सर बैठे हुए हैं, उनकी क्या साधना रही होगी। सर बैठे हैं, ये चित्रकला अवधान ये भी दिखाएंगे, इनकी क्या साधना रही होगी। ये साधना को प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमको आम लोगों के पास पहुंचाना है, तब जाके अवधान की जो प्रासंगिकता है उसको हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। మేడం చెప్తారా ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఏమైనా చెప్తారా మేడం? సమయాభావాత్ ఉమామహేశ్వర్ మహాభాగానాం వైవిధ్యमीमांसा श्वः प्रातः 9:30 भविष्यति। अहम् इदानीं I request the chairperson Annapurna madam to express her views. సభా కల్పతరుం వందే. అందరికీ నమస్కారం. ఈవేళ చాలా శుభదినం, నాకు ఎంతో బాగుంది ఇక్కడ. ముఖ్యంగా సురభి గారిది చూసిన తర్వాత చాలా చాలా బాగుంది. ఎంత ప్రజ్ఞ, మనకి తెలియదు బయట ఎంత ప్రజ్ఞ ఉందో. మన కళ్ళ ముందు ఏదైతే ఉందో అదే ఉంది, అదే నిజం, అది చాలా బాగుంది అనుకుంటాం. కానీ బయటికి వెళ్ళి చూసే కొద్దీ ఇంకా ఎన్ని విద్యలు ఉన్నాయో, ఆ విద్యలన్నిటి మీద ఎంతమంది కృషి చేస్తున్నారో చూస్తే మనకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్, అది చాలా స్ఫూర్తి కలుగుతుంది. ఇలాంటివి చూడాలి, ఇలాంటివి చేయాలి అని మళ్ళీను. నిజంగానే ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు, నేను కూడా అప్పుడు చెప్తున్నాను సేపు అభిమన్యుడినే తలుచుకున్నాను. ఎన్నో రోజుల క్రితం అభిమన్యుడికి కడుపులో ఉండగానే మొత్తం విద్యనంతని చెప్పాడని చెప్తారు కదా అర్జునుడు, దాన్ని ప్రయోగించాడు అతను అంతాను. అలాంటి మూలాలు కలిగినటువంటి భాష, మూలాలు కలిగినటువంటి సంస్కృతి మనది. అలాంటి సంస్కృతి నుంచి ఎన్నైనా రావచ్చు, ఎన్నైనా ఉన్నాయి లోకంలో విస్తృతంగాను. వాటిని మనము అన్వేషించి పట్టుకోవడం, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం నేర్చుకోవడం, ఇవి రెండు పిల్లలు చేయాల్సినటువంటి పనులు. ఇంకో మంచి పాయింట్ కూడా సార్ కూడా చెప్పారు, ఏంటంటే ఏ విద్యైనా మన లైఫ్లోకి రాకపోతే, మన జీవితంలోకి రాకపోతే ఆ విద్య వల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు. అది ఏం చెప్పారంటే ఆయన, వీటిలన్నింటినీ మన జీవితంలోకి ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఎలా తెచ్చుకుంటే మనకు ఉపయోగిస్తుంది అన్నదానికి ఆవిడ చెప్పింది చాలా మంచి ఉదాహరణ. ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అంటే భయపడి పారిపోయే వాళ్ళే చాలామంది ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే అంత టైం పెట్టాలి, అంత చేయాలి కదా. అంత అక్కర్లేకుండా నిజంగా చాలా సులువుగా, చాలా ఈజీగా కొన్ని టెక్నిక్స్తో మనం ముందుకెళ్ళచ్చు అనేది పిల్లలకు నేర్పితే కనుక అయితే వాళ్ళు చాలా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. ముఖ్యంగా ఇంకొక నా స్వకీయమైన విషయం కూడా ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను పొద్దునే చెప్దాం అనుకున్నాను, కానీ పొద్దున సమయం కాదని ఊరుకున్నాను. ఇంక నేను ఇప్పుడు ఎలాగో నన్ను పిలిచారు కాబట్టి చెప్పుకుని తీరాలి. ఎందుకంటే సాధారణంగా విద్యార్థులంతా కూడా గురువుల యొక్క గొప్పతనంతో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు అని అనుకుంటారు. కానీ నాలాంటి వాళ్ళు విద్యార్థుల యొక్క గొప్పతనంతో మేము గొప్పవాళ్ళు అయ్యామో అని ఫీల్ అయ్యేలాంటి సందర్భాలని చూస్తున్నాం. మాస్టర్ ఎప్పుడో నాకు 20 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేను పొడగట్లపల్లిలో ఉద్యోగం చేశాను. అప్పుడు మాస్టర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ సెకండ్ బ్యాచ్లోనే చదువుకున్నారు వీసీ గారు. చదువుకున్నప్పటిది గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన మొన్న వీరు వస్తే కూడా మేడం గారు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగారట. అది అసలు నిజంగా ఎంత అదృష్టంగానో అనుకున్నాను. నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలని లేదు అంత పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళాక. నేను కూడా 3 ఏళ్ళు ఉన్నాను అంతే అక్కడ. 3 ఇయర్సే ఆయన నా దగ్గర చదువుకున్నారు. నేనేం చెప్పాను కూడా నాకు గుర్తులేదు. పొద్దున కాదమ్మటి చెప్పాను ఆయన చెప్తున్నారు. కానీ ఆయన గుర్తుపెట్టుకునే దాన్ని చెప్పడం అనేది నిజంగా నాకు ఎంత ఆనందమైనా కలగజేసింది అనమాట. చాలా ఆనందంగా అనిపించింది.
తర్వాత అంటే ఒక విలువని నిలబెట్టుకోవడం. ఇప్పుడు ఒక విలువని నిలబెట్టుకోవడం అనేది వ్యక్తుల్లో ఉంటే వాళ్ళు పైకి వస్తారు, అదనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎవరి గొప్పతనం లేదు అక్కడ, కానీ మనం పలానా వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్నాం, పలానా నేర్చుకున్నాం అన్నది మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక అంశంగా పిల్లలకు కూడా తెలుస్తుంది. అది అక్కడ ఎవరి గొప్పతనం అక్కర్లేదు, నా గొప్పతనం ఏమి అంటే కించిత్ కూడా లేదు నిజానికి, కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అనే గొప్పతనం మాత్రం అయింది. కాబట్టి అలాంటి ఒక విలువని పిల్లలకు నేర్పడం అనేది అలాంటి గురువులు ఉంటేనే సాధ్యం. కాబట్టి వారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ కుమార్ ఉన్నాడు. కుమార్ అంటే నాకు చాలా అభిమానపుత్రుడు, చాలా ఇష్టం అబ్బాయి అంటే నాకు. ఎందుకంటే చాలా కృషి చేశాడు అతను, ఎంతో ఇష్టంగా చదువుకునేవాడు. కౌముది చెప్తే ఇవాళ చెప్తారు, అప్పచెప్తే కానీ అసలు ఉండేవాడు కాదనమాట. మొత్తం పాఠం అంతా నాకు అప్పచెప్పేసేవాడు, అంత బాగా చెప్పేవాడు కౌముది అంటే అతను. అలాగా వ్యాకరణంలోనే కృషి చేశాడు. ఈ విద్యాలయంలోకి వచ్చాడు అంటే, రాష్ట్రీయ విద్యాలయంలో అడుగుపెట్టాడు అతను అంటే నేను పడిన సంతోషం ఇంత అంతా కాదు. అంత మంచి చోటికి రావడం అంటే అంతకంటే అదృష్టం కూడా లేదు అతనికి. నిజంగా నేను చదువుకోలేకపోయాను ఇక్కడ బాధపడుతున్నాను, ఉద్యోగం చేయలేకపోయానని బాధపడట్లేదు. ఎందుకంటే మీరందరూ ఇంత బాగా సంస్కృతం మాట్లాడుతున్నారు, ఇంత బాగా హిందీ మాట్లాడుతున్నారు, ఇంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే నిజంగా నేను ఇక్కడ చదువుకుని నేను కూడా అలాగే ఉండేదాన్ని ఖచ్చితంగా. కానీ మేము చదువుకున్నది పల్లెటూళ్ళలో చదువుకున్నాం. కొన్ని కాలేజీలు మా సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము తరోగా చదువుకున్నాం, అందులో ఏం అనుమానం లేదు. కానీ ఇలాంటి వొకాబులరీ అంటే అందరికీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటటువంటి ఒక భాషని ఇక్కడ ఉంటేనే నేర్చుకోగలం. మా పిల్లలందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైనింగ్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చి ఎంఏ చదివి మాకు వచ్చి పాఠాలు చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు వాళ్ళంతాను. అంచేత అలాంటి ఒక అవకాశం నేను ఇక్కడ చూడగలిగాను. అలాంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వీసీ గారికి నిజంగా ఆయన పదవికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అంత నా దగ్గర ఆ 21 ఏళ్లలో పెట్టింది గుర్తుపెట్టుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది పొద్దున్నే చెప్తే బాగుండు అనుకున్నాను నేను. ఆయన స్టేజ్ మీద పిలిచినప్పుడు నేను రావాల్సింది కాదు, అసలు కొంచెం రాకూడదు అనుకున్నాను. కానీ అప్పుడు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు, అందుకని వచ్చేసాను అనమాట. అట్లాగా వచ్చేస్తే ఆయన నాకు అలాంటిది ఒకటేదో కప్పితే నిజంగా చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఇది నా పర్సనల్ విషయం. తర్వాత ఇవాళ ఇక్కడ నేను కూర్చోవడం కూడా నాకు అదృష్టమే నిజంగాను. ఇంతమంది పెద్దలు ఉండగా నన్ను అక్కడ కూర్చోమని అడిగారు అంటే ఏదో పూర్వజన్మలో చేసుకున్న సుకృతం అంతే. అంచేత మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇవాళ ఆవిడ చెప్పింది మాత్రం చాలా బాగుంది, సంతోషం. Thank you, Surabhi ma'am. There is a coincidence. I am also students of Jain Vishwabharati, Ladnoon. I did my master's in that too, with the guidance of Samnis and Samnas. They liked me very much. And I request Annapurna madam to felicitate Surabhi ma'am. Now I request our VC ma'am to felicitate Annapurna ma'am. మీరే ధన్యవాదాలు. రండి, లాస్ట్ సెషన్ ఉందా? ఓకే. Now the program ends. I thank one and all for your valuable presence to make this program a grand success. Thank you very much. काश्चन सूचनाः सन्ति.